So Excel, you have to go to add-ins. You have to go for Excel add-ins. Okay, go there, and then there are multiple tool pack. Yes, in the morning I told that you cannot automate without using VBA or VB. If you want to automate the Excel commands, you need to learn VB. Okay, and sometimes some commands are given as add-in or plugins. So I have given you a link of 75 plugins in the morning. Did you get that? हेलो. Yes, sir. हाँ तो बोलो तो यार. My last सबका ये बीमारी है. I taught for hour for 15-20 minutes. Excel sheet पे थे ना, so switch करना पड़ा. स्विच करना पड़ा मतलब? तो उस पर वर्क कर रहे थे, तो फिर इसका माइक ऑन पे रहता नहीं है, तो आगे ऑन करना होता है. Anyways, so yeah. So add-in is there. So this add-in has to be installed. Without that, you cannot use Excel for any statistical analysis. So I already have been. Even if I click automation and those sort of things, you can check out. If you click all these things, this is a different world itself. Okay, you see different sort of automations are there, and then you have to learn them and understand like which sort of automation is done. So okay, now when you click OK, if it is installed, that you will come to know by seeing on the data tab analyze. So I have done 2 plugins, in fact 3 plugins. The VBA one will not appear right now. You have to save in the XLSM format. So data analysis, these are the tests which it can do, and most of them can be useful. In fact, जितना भी आपका SIP का काम है will be done through this. Okay. However, there was somebody called Samiksha in IB batch second year. उसको text mining का काम दिया गया था. So text mining is not possible without coding. So she did learn R finally. Anyways, your choice, no problem. Okay, so that's one thing. Now let's go to simple thing. Everybody knows that this is the way we create data. We have X column and Y column. Can you see that? Yes, sir. Yes, sir. Now let's see what all options Excel gives us for data analysis. Okay, so we go for data analysis. First thing is correlation. Okay, we talked about correlation yesterday. What is correlation? What's the formula, shortcut formula of that? Sir, covariance upon base sigma x into sigma y. Yeah, so covariance of xy divided by sigma x sigma y. Yeah, great. So input range, okay, is this one. Okay, so again there is options that your data is horizontal or vertical. If your data is horizontal, then you click one like this. Okay, sorry, then you click and then go ahead. Okay, so things will change. Now what's the beauty of this casing? That the output can be inside this worksheet. This is a worksheet, sorry, this is a workbook. Inside there are multiple worksheets. So either it could be in this workbook or another workbook. That is up to you. I hope people will be able to understand this thing. That's not a big thing, just for output saving. Or you want the output to be within this in this place by playing the output range. Okay, भाई नहीं समझ में आ रहा तो बता दीजिएगा. Again, this is disappointing that last time also today morning I said the same thing. After half an hour somebody said सर समझ में नहीं आ रहा है, and they said sir I was trying to understand. मैंने कहा यार
when I'm saying to you don't understand, then you follow that. I'm not saying first think and talk to me, tell me tomorrow that if you understand or not understand. Okay, now see what we had data in sheet 1. We said arrange by work data, yes or no? What did we do? We had this option, new worksheet. So in this present workbook, new worksheet is created, and this is the correlation. Is that fine? Yes, sir. इसका एक और तरीका जहाँ तक मुझे भी आता है, let's check it out, is equal to corel. Okay, now you have two data set. Okay, so there are two ways. Either you use the corel command, which is here, or you use data analysis, go to data analysis and do everything. Okay. Yes, Sir, where the ads in option come in? यार which office you have? Sir, 2019 version. ऐसा करो अपनी विंडो शेयर करो, because if I tell you what's the use, I'm stop sharing my window, you start sharing your window. कौन है जो कर रहा था? Sir, Ashish. हाँ जो करो यार अपना स्क्रीन शेयर. कर रहे हो कि नहीं? अरे 1 मिनट कर रहा हूँ. 1 मिनट में क्या ले यार, इतना टाइम थोड़ा लगता है. भाई ये कैसे हटाएंगे गूगल क्रोम से? आई डोंट नो, माई क्रोम इज लाइक अगेन एंड अगेन. एनीवेज, ओके, गो टू फाइल, गो टू बॉटम ऑप्शंस, बिल्कुल नीचे, नॉर्थ साउथ वेस्ट कॉर्नर, साउथ वेस्ट. अरे भाई साउथ वेस्ट कितने होता है? Sir, ये वाला. हाँ, और कहाँ पर है ऑप्शंस? नाउ गो टू बिल्कुल नीचे एड-इन्स, सेकंड फ्रॉम बॉटम, Okay, sir. क्लिक दैट, मैनेज एड-इन्स, नीचे आओ, नीचे गो, नीचे जहाँ पे गो लिखा हुआ है, क्लिक एनालिसिस टूल पैक. And then first वाला ना sir. हाँ, करेंसी वाला दोनों भी कर लो. ओके करो. नाउ गो टू डेटा टैब, Sorry. गो टू डेटा टैब. हाँ, you have data analysis at the right. Okay, Okay, sir. Thank you. चलो stop sharing your screen. Yeah, coming back. Yeah, so this is one thing. Now again, most important thing for you is to understand when you take data. Has anybody used any time Google form and taken any data? yes, sir. अरे क्या नाम है इसका, जिसका है, मतलब क्या नाम था? श्रेयांश. who was the CR who messaged me today? CR का नहीं, शिवांश. Yes, sir. Yes, sir. सो जो आपने सर्वे फ्लोट किया था उसमें क्या कहते हैं, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर? Sir, it was just a poll. अच्छा, पोल ही था, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं था कि कौन सा बैच है ये वो है. एनीवेज, ठीक है. सो दोज हु हैव टेकन गूगल फॉर्म डेटा, तो व्हाट हैपेंस देयर, यू हैव क्वेश्चन coming here and data coming here. Okay, समझ रहे हो? So each and every column is a question. समझ में आया नहीं? Yes or no? Yes, sir. Let me give you a demo. एक मिनट, just a second.
मैं तुमको दिखा रहा हूँ फाइनल डेटा, बिकॉज व्हाट आई एम टीचिंग इज एक्चुअली हरी अगेन इट्स हाई एंड, बिकॉज इट्स दैट इज व्हाट इट वर्क्स, मतलब कोई मतलब नहीं है हाई छोटी मोटी चीज़ सिखाने का. सी कहाँ गया, वेट, yeah, so you have, okay, let me open another one. This is little complex for you. So there are two ways. One is this one, you create a survey like this in Excel and float it, ठीक है, and responses are in drop down. But problem here happens is that this sheet should go to every person, and because many places Google Forms are not allowed, so this sheet you can send to them where instructions are here and questions are here, and you can have responses here. So one person, one sheet, and then you have to copy paste response 1, response 2, response 3, response 4, response 5, response 6, response 7. In this way you can do that. Or as we have done earlier, you can have a Google form floated, and then question 1, question 2. Again, the difference between this table and that column is here responses are horizontal. Okay, every new response Yes, is a sir. new row. There in the Excel format, every response is a new column. Okay, which can be transposed. I hope you understand what is transpose. People know what is transpose. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. So these are two ways. मतलब this is beyond Google Form for people who are not familiar with Google Form, because their net breaks and those sort of things happen. So this is one way. And ultimately, ट्रांसपोज क्या है बता दीजिए. अच्छी बात है, तुम पहले बोल दिए. देखो ट्रांसपोज का फुल, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है जरा बताना. ग्रेजुएशन BBA और यू और 12th. साइंस. Do you know AT, what is transpose matrix? नो सर याद नहीं है. Great. ठीक है. Now a transpose would be समझ में आया क्या किया है. What has happened between these two? Hello, the person who said समझा दी. The rows and columns are indexed. Yeah, so a transpose is only possible for a square matrix. It's not possible. नहीं, sorry, I'm wrong. It is possible for every. हाँ. Transpose method is by cross multiplication. क्या? सर ट्रांसपोज मेथड तो मतलब मुझे ध्यान आ रहा है, बट जैसे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है. बाई क्रॉस कुछ वैसा ही मल्टीप्लिकेशन है. क्या होता है भाई? What is बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? सर जैसे रो 1 में
कॉलम 1 कॉलम 2 में रो 1 रो 2 में 1 2 3 4 है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना। अरे तो ये भाई बाई क्रॉस भाई ऐसा कॉम्प्लेक्स मत किया करो, ट्रांसपोज इज सिंपल यार। तुम लोग पता नहीं आगे का जो पढ़ते हो भूल क्यों जाते हो। जस्ट एग्ज़ाम के लिए पढ़ोगे, ज़िंदगी भर के लिए नहीं पढ़ते हो। दिस इज़ द प्रॉब्लम। मैंने नहीं पढ़ा है, 15 साल हो गए। सिंपल ये है ट्रांसपोज, ए बी सी डी ई एफ रोज इनटू कॉलम, ए ट्रांसपोज इज दिस, खत्म बात, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है। वो जो तुम कह रहे हो वो मल्टीप्लिकेशन होता है, ए इज इक्वल टू बी क्रॉस सी, ठीक है, वो अलग चीज़ है। एनीवेज, सो ट्रांसपोज करने के लिए एक दो तरीके हैं, आइदर यू डू इट मैनुअली और यू कॉपी इट and then wherever you have to paste, like suppose you have to paste here, paste special पे क्लिक किया, यहाँ पर आता है ट्रांसपोज, दैट्स इट। तो वो अपने आप हो जाएगा, बिकॉज अगर बहुत बड़ा डेटा है, अगर डेटा इतना बड़ा है तो यू कैन नॉट मैनुअली एंटर, ठीक है। दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस कोर्स बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। एनीवेज, सो नाउ इफ आई हैव टू यूज कोवेरियंस फंक्शन, can anybody tell me what could be input range? What should be input range? Sir, A2 to B7. A2 to B7. Are you sure? तो और क्या करना है फिर? सर वो लेबल्स के लिए XY यूज करेंगे कि दो नहीं, so दो वैल्यू। selection is fine or not? Should I click labels in the first row? Yes sir, over here we will put sir, we will select those also, X and Y. ये select करूँ ना? Yes sir. Everything is fine. Now, हाँ भाई, कोई डिसएग्री करता है? That Anyone disagrees? दाविशमान, यस सर। सर वो A1 से B7 आएगा। सही and किया है वो इसने, label- नहीं किया है? सर A1 से B7 लग रहा है मुझे। Because you have clicked this. If you don't click this, then it is A2. Okay. Now what is this? ये क्या हो गया? ऐसे कैसे इसको इन्फर करोगे? बताओ। क्या है ये? What is 2.9167? सर पॉजिटिव कोवेरियंस। पॉजिटिव कोवेरियंस ये क्या होता है? What is positive covariance? इसका कोवेरियंस क्या है इन दोनों का? अगेन कौन आया है महाराज, इतने इसको टाइम मिल गया आने का। अरे वाह भाई, क्या हो गया? हरिओम, क्या बरसात बहुत हो रही है बॉम्बे में? हाँ सर, थोड़ा सा। हमें तो डर लगता है कांजूरमार्ग कब डूब जाए, तो हमने कहा इसलिए आधे घंटे लेट आए होंगे। एनीवेज, कांजूरमार्ग इज द प्लेस इन बॉम्बे, सेंट्रल बॉम्बे। एनीवेज, या हाँ, तो ये कोवेरियंस क्या है? ये दिस इज अ डेटा। व्हाट इज द कोवेरियंस हियर? कितना है कोवेरियंस? सर -2.75। ये 2.9167 वो क्या है? सर वो है क्या है? सिग्मा और सिग्मा वाई। सिग्मा वाई दोनों बराबर हैं? यस सर। चलो लेट्स सी। देखो
तो आपने कहा ठीक है, यू हैव सेड दिस कि ये कोरिलेशन है. सो हमारा फॉर्मूला क्या है? कोवेरियंस. अब देखो कोवेरियंस में दो चीज़ें होती है, ध्यान से देखना. दिख रहा है यहाँ पर कुछ? कोवेरियंस डॉट पी, कोवेरियंस डॉट एस एंड कोवेरियंस डॉट एन, सिंपल कोवेरियंस. ठीक है, हम इसमें नहीं जाएंगे अभी. ओके, सो लेट्स हैव सिंपल कोवेरियंस of array 1 on of array 2. ठीक है, कोवेरियंस आपका आ गया. अब हमने क्या रिलेशनशिप निकाला था? कोवेरियंस इज व्हाट? कोवेरियंस इज कोरिलेशन, सॉरी, कोरिलेशन इनटू व्हाट इज कोवेरियंस? सर कोवेरियंस इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट इनटू सिग्मा x इनटू सिग्मा y. ठीक है, इज दैट फाइन? ठीक है, व्हाट इज कोरिलेशन हियर? अच्छा पहले बताओ व्हाट इज एस डी एक्स? व्हाट इज एस डी एक्स? व्हाट इज एस डी एक्स यहाँ पर? सर 2.9166. पक्का? नहीं सर, पक्का नहीं पता. थोड़ा सा मिस कर रही हो. और उसका स्क्वायर रूट होगा ना? क्या होगा? 2.91 का स्क्वायर रूट होगा. हाँ, तो देयर इज वन कमांड स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट दो तरीके से निकलता है, SQRT लिख के या फिर पावर, और इसको 0.5 कर दो पावर को. एक ही बात है. ठीक है, 0.05 तो नहीं हो गया? हाँ 0.05 हो गया. ठीक है, और सिमिलरली या फिर SQRT एज यू वांट टू यूज. और कोरल कितना है आपका? -94 -0.94 पॉइंट क्यों नहीं आ रहा है? 0.942. ठीक है, नाउ दिस स्टार दिस स्टार दिस. ठीक है, सो वी हैव गॉट आवर कोवेरियंस. द पॉइंट इज दिस इज गिविंग कोवेरियंस एंड दिस इज वेरियंस. यहाँ पर वेरियंस बाय चांस सेम है क्योंकि डेटा वैसा है. अभी देखो इसको चेंज करते हैं. ठीक है, सो एडवांटेज इज दैट थिंग्स विल चेंज. ये चेंज हुआ ना, देखा? या देखो फॉर्मूला देखो क्या आ रहा है. वेरियंस कैसे निकालते हैं? वेरियंस ऑफ द पॉपुलेशन. ओके, समझ आ रहा है? हेलो, यस सर. यस. ठीक है, सो please understand that we have done covariance, we have done variance, we have done correlation. Now comes the tricky part. जो आपको मैंने बोला था आपके सीनियर्स ने दिखाया है. सो वी गो हियर एंड शो द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. अब देखो डिस्कवरीज अगेन सेम थिंग. इनपुट रेंज लेबल्ड दिस. नाउ यू कैन हैव मल्टीपल वेरिएंस. आई कैन डू बोथ. मैं दोनों कर सकता हूँ, दोनों का ही कर देते हैं एक बार में. ठीक है, न्यू वर्कशीट, समरी स्टैटिस्टिक्स, कॉन्फिडेंस इंटरवल. ओके, अब we are not interested in the highest and smallest. okay click करेंगे. now this is the data you see.
x का मीन, उसका स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, किसी को याद है? हमने किया था थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ये वो E या F वाला था, एरर फंक्शन। No, not error function. Standard error is statistics by anyways, leave that, we will do it later. So standard deviation is there, sample variance is there, kurtosis, skewness we did, everything. So all whichever is required is there. Okay, count मतलब कितने element हैं, what is the total sum of that. Now here we will come later that how do we get this confidence and this standard error. Okay, इसमें mode क्यों नहीं आया इस डेटा में? रिपीटेटिव वैल्यू नहीं होगी। वेरी गुड, यस यू आर राइट, एवरी वैल्यू इज ओनली वन टाइम। ठीक है, यस सर। therefore there is no mode in the description. So this is how you should generate the statistic of the description of the sample, the questionnaire. ठीक है, नाउ इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप हर किसी का कर्टोसिस और सैम्पल वेरिएंस दिखाएं, बिकॉज अगर आपने कर्टोसिस स्क्यूनेस दिखाया देन द क्वेश्चन विल कम बेटा व्हाट इज कर्टोसिस, व्हाट इज स्क्यूनेस, एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन दैट। ओके, सो दिस इज गिविंग एवरीथिंग। यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं डेटा एनालिसिस में जाके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। ओके, नाउ दिस यू कैन रिमूव एंड स्टिल डू, वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर। Okay. But if we are doing this, then within few seconds our work is done. Only the explanation portion will get remained. Bhai, that is computation. I never denied this. But the point is, your seniors did not know anything except Google form, hence percentage and everything was done. Or they did not try to do themselves. उनको थ्योरी में तो पता था कि मीन मीडियन मोड क्या होता है, लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं कि हमें खुद निकालना चाहिए। उनको they were dependent on the tool called Google Form. Okay, work is done, but the main thing is to explain. Yes sir. सर उसमें जो कोवेरिएंस में 4 ऑप्शंस आ रहे थे सर, वो क्या थे? यार कोवेरिएंस में 4 ऑप्शन नहीं थे, वो सिंपल है। देखो ये था ना, दिस इज व्हाट इज वेरिएंस। यस सर। व्हाट इज वेरिएंस? सर स्क्वायर ऑफ xi माइनस स्क्वायर ऑफ xi माइनस। और कहना है से कोवेरिएंस ऑफ अ वेरिएबल विद इटसेल्फ। यस सर। सो दिस इज वेरिएंस। y का कोवेरिएंस विद y इज वेरिएंस ऑफ y, x का कोवेरिएंस विद x को, ठीक है, और x का y के साथ -2.75। यहाँ पे जरूरत नहीं है बिकॉज दिस इज ऑलरेडी डन। गॉट इट? So these two are variances, these are covariances. All are actually covariances, but we are saying covariances of a variable with itself is variance. ठीक है, ultimately all are covariances mathematically. Okay sir. Yes sir. ठीक है, so ये हो गया। Sir, one with that formula also. वो one with that formula also, that was if you just type covar, वो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, कोरेल इज इक्वल टू, चलो सॉरी उल्टा लिखा, कोवैर इज इक्वल टू कोरेल स्टार एच डी एक्स स्टार एच डी वाई। ठीक है, अब डोंट से यू डोंट नो XDX. We can calculate. I don't know, sorry. ठीक है, square SQRT variance y variance x. Is it fine? Yes sir. Yes sir. So this completes your descriptive statistics. Let's go here. Descriptive statistics, correlation, covariance. Okay.
Now let's say what is histogram. मैंने भी देखा नहीं है, because I never played histogram. ये got it. Yeah. So let's try this. किसी को पता है वैसे बिन क्या होता है? Sir, please pardon. What is a bin? Computing area to store क्या? cloud computing area or space to एक store. मिनट, ये देख लेना, ये सबसे बड़ा गड़बड़ होता है एक्सेल में, दैट आई एंटर्ड सम डेटा, इट वो बिकेम डेट. नो एवरीथिंग विल बी डेट ओनली. ठीक है, जैसे 12 एंटर कर रहा हूँ तो 12 नहीं आ रहा है, तो यू हैव टू गो हेयर, फॉर्मेट सेल्स एंड चेंज इज टू जनरल, देन इट विल बिकेम अगेन 12. ओके, सो दिस एरर यू शुड नो एक्चुअली. ठीक है, let's try. I'm trying, so because histogram is not that mushkil. Histogram input range is this, bin range is this. Yeah, got it. इसको मैं बाद में कराऊंगा, because this is made up of complete data. I have to check it. I did not plan it. Anyways, what else is there? Regression, sampling. Okay, moving average we are not doing. Regression is one thing. So the advantage of using Excel is that I don't have to tell you lots of history, not history but statistics. Now we are coming to regression directly. Please, anyone has problem till now? Covariance, correlation, everything what you understood? Everybody understood? Yes ये sir. तो समझ आ गया सर. हाँ. एक्सप्लेनेशन पोर्शन में क्या और कितना बोलेंगे? यार देखो, अभी एक्सप्लेनेशन में, लेट्स पुट इट दिस वे, दैट इज द ब्यूटी दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. देयर इज नो पॉइंट अगर एक क्वेश्चन का आंसर आता है ये, ठीक है, कि व्हाट इज द कस्टमर सेटिस्फैक्शन, 3.5 मीन आ गया, स्टैंडर्ड एरर ये आ गया, स्टैंडर्ड डिविएशन ये आ गया. नाउ मेन थिंग इज again description from population to sample to population. Are you doing that or not? Okay, Yes sir. मेन चीज वो है, और उसके लिए ये सारी वैल्यूज काम आएंगी, स्टैंडर्ड एरर एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल. ओके, सो अगेन एज आई सेड, दिस इज ऑल यूनिवेरिएट. यूनिवेरिएट मतलब हमने एक वेरिएबल लिया, एक क्वेश्चन स्टेटमेंट लिया, वी डिड दैट. वी डिड नॉट गो फॉर एनी रिलेशनशिप स्टडी. We just took one variable, data of 200 responded on that, and that is x, that is y. So x is one variable, uska mean median mode, y ka variable, uska mean median mode, everything, descriptive statistics. It does not help much, but it just helps us to understand. Suppose like here, this is a survey. Let's say this could have been a survey. So and you have to get answer of, okay, let me open a survey, wait करो. तुम लोगों के लिए सर्वे खोला जाए. फाइनली माय PhD.
So now डरना मत, I have done all this. देखो हर बंदे का मैं रिस्पॉन्स आईडी रखता था, ठीक है, उसका नाम लिया था, उसकी एज ली थी, उसका जेंडर लिया था, ईमेल लिया था, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सब मैंने गूगल फॉर्म सर्वे किस्म जो भी है वैसा ही था, एक्सपीरियंस कितना है सब नंबर में होता है ना, व्हेन यू डिज़ाइन अ फॉर्म यू कैन से इट्स अ नंबर और इट्स अ टेक्स्ट, होता है ना ऑप्शन. यस सर. सो आई डिड नंबर हेयर, आई डिड टेक्स्ट हेयर, सो यहाँ पर टेक्स्ट है. नाउ सपोज दीज टू वेरिएंट्स आर देयर, ठीक है. अब ये एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल ये, लेट्स टॉक अबाउट दीज टू. मैं वैसे ही कर रहा हूँ, आई एम नॉट यूजिंग दैट फंक्शन, आई एम जस्ट डूइंग स्टैंडर्ड डिविएशन, यू कैन लर्न इट योरसेल्फ. Now what can you tell from this statement, that question 2 has more varied response as compared to question 1. Value shows that only. हाँ, so that's one. Now अगर आप सिर्फ ये दिखाते एवरेज, अब एवरेज बड़े 50 तरीके होते हैं, ठीक है, आई विल जस्ट गो फॉर एवरेज. एक्सेल में ये है कि देखो आई एम नॉट डिनाइंग एनीथिंग, it's just that it's what suits you and what is that you want to learn. Now this has a lower average, ठीक है, this has a lower average, this has a higher average, but इसका standard deviation कम है, इसका standard deviation ज़्यादा है. So I can say directly from this, more or less people have highly rated this one over this one. Instance based. हाँ, अब now that is there, that is where your objective comes in. Is your objective to compare these two things or combine these two things? That is where things comes up. Okay, कि यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन है भी कि नहीं है, ये मैंने आपको बस दिखाया. अभी हम उसी में जा रहे हैं रिग्रेशन पे. सो लेट्स गो टू रिग्रेशन. सो आई एम जस्ट राइटिंग तो चलो यहीं पे लिख देता हूँ. इसमें होता है एक ऑप्शन, आई कैन एक्सपैंड दिस. एक्चुअली देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस हु डू एवरीथिंग ऑन एक्सेल. पीपीटी भी एक्सेल बनाते हैं हम लोग, एंड यू माइट बी सेइंग कैसे बनता है, बन जाता है. ओके, नाउ ये सबको पता है. फॉन्ट साइज थोड़ा सा लार्ज कर दी. अच्छा रुक जाओ. This is possible, Yes, sir. ठीक है, and this is also possible. Agreed? Yes, sir. Yes, sir. So the biggest, sorry, चलो ठीक है, small x small y कर लेते हैं इसको. Small x small y. The biggest concern is that when two variables are given, which one is x and which one is y, which means which is independent, which is dependent. And I will request you to watch the video in my basic of regression which I was telling to your seniors, so that you get more clarity of that. Okay, it's already there. ठीक है. Yes, sir. Now let's come to simple basic formula. आप लोगों को रिग्रेशन के डेरिवेशन याद है, किसी को नहीं याद है? कुछ याद है? व्हाट इज, हाउ टू गेट ए, हाउ टू गेट सी, हाउ टू गेट द कोफिशिएंट? नो?
यस नो, कुछ तो बोलो। नो किस सर, नो सर। देखो अब क्या है यहाँ पर, दिस A इज इक्वल टू कोवेरियंस डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ x, ठीक है। यस सर। एंड B इज इक्वल टू कोवेरियंस डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ वाई। वेरियंस ऑफ y। सिंपल इतना याद रखो, वो xn फेक्सन वेक्सन करोगे तो पागल हो जाओगे, उसका डेरिवेशन बता दूंगा, लेकिन लेट्स गेट टू सिंपल वन फॉर्मूला। सिंपल वो होता होगा ना आपने xn -1 और वो हाँ, वो बहुत लंबा होता है सही नहीं, वो है बड़ा सिंपल, उसको याद कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें भी वही है, बट याद करने के लिए बड़ा सिंपल ये है कि एटलीस्ट एक चीज तो याद रहे, यस ठीक है ना। इसके डेरिवेशन yes. पे हम अभी नहीं आएंगे, बाद में जाएंगे, इसको आप सबसे पहले याद करो। नाउ टेल मी दिस, व्हाट इज A star B? वेरिएंस ऑफ वाई अपॉन वेरिएंस ऑफ एक्स। पूरा बताओ। What is A star B? वन आ जाएगा क्या? अबे तुम लोग कहाँ हो यार, वन कैसे आएगा? कोरिलेशन का स्क्वायर हो गया ये तो। मतलब तुम लोग माशाल्लाह ऐसे आंसर दोगे। ठीक है, सर यही तो बोला मैं कोरिलेशन का तुमको नहीं बोल स्क्वायर। रहा हूँ, तुमसे पहले जो दूसरे लोगों को बोल रहा हूँ। Yes, sir. You have to understand when I am saying what to do. ठीक है, now अब people will say सर ये तो ठीक है, मतलब ये बेसिक है, अभी आपको हम डिराइव करके दिखाते हैं पुराना वाला कैसे करते हैं। रेडी? यस सर। लेट्स से y इज इक्वल टू, फॉन्ट बढ़ाना पड़ेगा, मैं पुराना वाला डिराइव करके सिखा रहा हूँ, लेकिन काम इससे ही कर लेना, एनीवेज विच एवर यू वांट टू रिमेंबर, ठीक है। ये हो गया, सॉरी दिस इज नॉट रॉन्ग, हमारे सीन नोटिफिकेशन में अलग है, नोटिफिकेशन चेक कर लेना, बहुत जगह BYSB लिखते हैं, बट ठीक है, तुम्हें जो लिखना हो लिख लेना, बट यू गॉट द कॉन्सेप्ट ना। रिग्रेशन ऑफ x इंटू वाई इंटू रिग्रेशन ऑफ b इंटू वाई इंटू एक्स इक्वल टू कोरिलेशन स्क्वायर, समझ गए ना। हाँ, वेरिएबल कुछ भी हो सर, वैल्यू तो वही होगी। हाँ हाँ, तो ये ax प्लस सी हुआ। अब इसको हम लिख सकते हैं y एवरेज इज इक्वल टू a x एवरेज प्लस c। कैन वी राइट दिस? वी कैन। अब तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाना इस एवरेज उस एवरेज में। लेट मी पुट वन ब्रैकेट, पता लगा ये a है कि क्या है, कुछ को समझ में नहीं आया। ठीक है, फाइन। यस सर। कैन वी ऑल्सो से अब मैं समेशन को लिख रहा हूं सम, ठीक है, तो डरना मत।
ये सही है? इज दिस फाइन? यस सर। हाँ यस सर। ठीक है। अब फाइन? यस और नो? यस सर, थिंग इज सेम। ठीक है। यस? यस सर। ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है। Yes, ए sir. और सी अब फाइंड हो जाएंगे, तो इसी से करके आ जाता है। मतलब सारी जो खिचड़ी है यहीं से बनती है। 2 इक्वेशन बन गई ना, मतलब तुम्हें करना क्या, पूरे कॉलम का तुमने सम निकाल लिया y का x का, बस, और दूसरे में एक बार वाई एक्स मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे का निकाल दिया और एक्स स्क्वायर निकाल लिया। यू कैन डू अदरवाइज ऑल्सो, यू कैन डू वाई स्क्वायर ऑल्सो, हाउ एवर यू वॉन्ट टू डू, दिस इज सिंपल वे टू रिमेंबर द फॉर्मूला। ठीक है सर इसका भी तो फॉर्मूला होता होगा रिग्रेशन का इसमें। यार, रिग्रेशन का फॉर्मूला जो है वो मैं तुम्हें डिराइव करके मैं बता ही तो रहा हूँ, इसको तुम डिराइव कर लेना, फिर इसको ब्रेकअप करोगे। लेट्स पुट इट दिस वे। अब मेरे को याद नहीं है क्योंकि मैं याद करता नहीं हूँ उसको, मेरे को वो कोवेरियंस वाला ही याद है। लेट्स सी व्हाट इट इज। हाँ ये देखो, ये देख रहे हैं यहाँ पर, यस सर। ये आ रहा है ना अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड हाँ स्क्वायर। यस सर। सो इज अल्टीमेटली हाउ यू वांट टू सॉल्व, आएगा वही कहानी जाके। 2 इक्वेशन बन गई ना यहाँ पे। इक्वेशन 2 is having a c and sum given yx which we can sum of given this and sum of x, and similarly this equation. Okay, you can Yes, have sir. you can also say कि नहीं सर I will make a different equation, so you can say कि ठीक है चलो भाई तुम अपनी बात मान लो, sum of y square is equal to a star sum x multiply by y प्लस सी स्टार सम वाई। यू कैन से कि सर मैं इसे सॉल्व करूंगा, आई हैव नो इश्यूज, यू कैन टेक एनी ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है सर इसमें अगर हम डिस्क्रिप्टिव लेते हैं स्टैटिक्स नहीं, पर अभी, तो अभी अभी रुको, डिस्क्रिप्टिव की नहीं, अभी सिर्फ आ रही है हाउ टू कैलकुलेट ए एंड सी। लेट्स स्टिक टू दैट। सो देखो, आई डोंट रिमेंबर फॉर्मूला, I am very frank because I remember this, and if somebody says कि सर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, we cannot help you covariance, no problem, then I will go by this, I will get this, I will get this, either of this 1 or 2 3 whatever it is। ठीक है, एंड फॉर्मूला इसी में आएगा, किसी को चेक करना है तो कर ले, घूम फिरा के यही आएगा। ये स्लोप है, ये इनमें से पता नहीं, you have to see the slope, equation of the slope। ओके, अल्टीमेटली ये देख रहे हो कौन सा? ये वाला? हाँ ये अंडर रूट। यस सर। तो आर स्क्वायर इज कोफिशिएंट ऑफ y on x into coefficient of x on y, that's it, that's what I remember। मेरे को और कुछ ज़्यादा याद नहीं करना, जैसे सिंपल दिस इज। अगेन मैं इसको एक और लिख देता हूँ, मैं तुम्हें बता देता हूँ मैं कैसे लिखता हूँ इसको। कोवेरियंस, आई एम जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम राइटिंग दिस।
ठीक है, क्योंकि ये x1 y है ना अल्टीमेटली, यस सर। सॉरी y ऑन x है, सॉरी ये y ऑन x, एंटर, b इज इक्वल टू कोवेरियंस x, y डिवाइड बाय कोवेरियंस y, y एज इट इज x बाय y। समझ रहे हो ना, आया समझ में? ये तो क्लियर हो गया सर। हाँ, तो मतलब मेरे को ये याद रहता है, सिंपल, आई रिमेंबर दिस वे, बिकॉज होता क्या था, बहुत बड़ा फॉर्मूला होता था, मुझे याद कभी रहता नहीं था, तो आई गॉट दिस शॉर्टकट फॉर्मूला। और ठीक है, y ऑन x, तो y यहाँ पर, x यहाँ पर, और यहाँ पे y नीचे है तो y नीचे, सिंपल, ठीक है, ओके। सर कल के डिस्कशन से भी सर एक पॉइंट पूछना था। अच्छा रुक जाओ, अभी तो आज का ख़त्म हो गया, आज का काम ख़त्म, रिग्रेशन हम लोग एनालिसिस बाद में करेंगे, 4 बज गए। हाँ बोलो। सर कल हम लोग ने फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम किया था, हाँ। हाँ तो सर चाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में सर जो फॉर्मूला होता है एफ एक्स स्क्वायर वाला सर, उसमें जो सी कांस्टेंट होता है सर, वो हम अपने इंडिपेंडेंट वैल्यू में कैसे निकालेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में तो सी दिया रहता है, बट अपने को फाइंड करना है तो सर कैसे करेंगे? यार अभी काई स्क्वायर नहीं टच करा है ना, तो आई विल नॉट टच इट बिकॉज दैट विल गो अगेंस्ट, तो प्लीज़ उसको अलग से तुम मुझे ईमेल कर दो, वी विल गो इन दैट, ठीक है। ओके सर, ओके सर। सो दिस इज रिग्रेशन, अभी वी आर नॉट डन विद रिग्रेशन, दिस इज रिग्रेशन व्हाट इज बी व्हाट इज एक्स। हालांकि रिग्रेशन अभी ख़त्म नहीं होता है, बट बहुतों को फॉर्मूला याद नहीं रहता है, मुझे भी याद नहीं था जब मैंने MBA किया था, ये मैंने PhD में इन्वेंट किया था, ये तरीका कैसे याद किया जाए, ठीक है। ओके, लेट्स मीट टुमारो।